آئیں سب خدا کی زندہ آواز میں سے ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی 47 ورس۔ لوکا رسول کی لکھی گئی انجیل بیان اور اس کا 22 باب اور اس کی 47 آیت۔ یہاں پر یہ لکھا ہے، یہ وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک بھیڑ آئی اور ان 12 میں سے وہ جس کا نام یہودا تھا ان کے آگے آگے تھا۔ وہ یسوع کے پاس آیا، آ کر اس کا بھروسہ لیا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے یہودا، کیا تو بھروسہ لے کر ابن آدم کو ٹھکراتا ہے؟ آمین۔ اس سے پہلے ایک اور حوالہ میرے ساتھ نکالیں۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 11 باب اور اس کی 23 آیت۔ یہاں پر یہ لکھا ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یاد داری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اس طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ آمین۔ یہاں پر ایک چیز ہمیں ملتی ہے، پولس ہمیں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی، یعنی کہ شرطوں سے ہوتی ہوئی ان چیزوں کے نوٹ کرتے کرتے پولس نے وہ بات اپنے اس کلام کے اندر قلم بند کیا، اور بائبل کے اندر لکھا ہے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا، میری بڑی یہ آرزو تھی، میری یہ خواہش تھی کہ میں آخری ٹائم اپنے ان کام کو تمام کرنے کو، جس کام کے لیے میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے، اس کام کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کیا کرتا، آپ لوگوں کے ساتھ ڈنر کرتا، تاکہ یہ ڈنر ہمیشہ تمہیں کیا کرے، میری یاد دلاتا رہے۔ اور خداوند نے اس ڈنر کے اندر خداوند نے اپنے شاگردوں کو ایک خاص چیز دی، اور وہ یہ کہا کہ یہ میرا بدن ہے اور میرا خون ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، اور میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، تاکہ جو کوئی اس میں پیتا ہے اور جو کوئی اس بدن کو کھاتا ہے اس میں زندگی ہے۔ ہاللیلویا۔ کتنے لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آج میرے پاس یسوع کا لہو اور میرے پاس زندگی ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہمارے چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو 2 سال کا ہے، سال کا ہے، 6 مہینے کا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو ہمارے گھرانے کے لوگ بار بار ایک پانی لیتے ہیں یا آئل لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھیر کرتے ہیں، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو یا پلاتے ہیں یا ان کے آئل کی مالش کرتے ہیں، تاکہ یسوع کا لہو اس کی باڈی کے اندر بھی جائے، اور یسوع کا خون جو آئل کی صورت میں ہم لوگوں نے بلیس کیا ہوتا ہے وہ ہمارے بچوں کو کیا کرے، ٹھیک کرے۔ اس کا مطلب کہ ہمارے لیے یسوع کا خون اور اس کا بدن ایک زبردست میڈیسن کی کیا بھی کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس سے پہلے کہ یسوع کا خون میرے لیے اور آپ کے لیے آج جواب اور آپ کو سوال اور آپ کو جواب دے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ضیافت جو یسوع نے کہا کہ میری بڑی آرزو تھی، میری یہ بڑی خواہش تھی کہ میں یہ ضیافت آپ لوگ کے ساتھ کروں، یہ ضیافت کہاں سے چلتی ہے اور یسوع نے کیوں ایسی آرزو رکھی کہ یہ میری بہت آرزو اور خواہش تھی۔ آج اس ضیافت کو اگر دیکھیں تو پرانے عہد نامہ کے اندر
पुराने ऐहदनामा के अंदर जब हम इस्तिस्ना की किताब उसके 16 बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जब इब्राहिम के साथ खुदा ने वादा किया, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ, जब याकूब का खानदान आगे बढ़ा तो वो कुछ खानदान लोग मिस्र के अंदर चले गए, क्योंकि यूसुफ वहां पर हुकूमत करता था, वहां पर वो सरबराह था, इंचार्ज था उस इलाके का, तमाम खाने वाली पीने चीजों के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल था। मगर बाइबल के अंदर लिखा है कि वो वहां पर ठहर गए और कई साल गुजर गए और वहां पर कई बादशाह आए और वो वहां ऐसे ही जिंदगी गुजारते रहे और बाइबल में लिखा है कि 400 साल तक वहां पर रहे और भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ गई और उनके पास उस मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों ने उन इजरायली लोगों के ऊपर कब्जा कर लिया और जैसे ही कब्जा कर लिया और वो इजरायली लोग मिस्र के लोगों के गुलाम बन गए और उनके ऊपर मिस्री लोग तशद्दुद करते। और बाद में लिखा है कि जब 450 साल हो गए और इसी दरमियान में खुदा ने अपने बंदा मूसा का खड़ा किया और उसने मुल्क मिस्र के अंदर से अपनी कौम को छुड़ाया और बचाया। और बाइबल के अंदर लिखा है कि जब वो जिस रात उसने मिस्र की गुलामी से आजाद होना था, और बाइबल के अंदर लिखा गया है कि उस दिन खुदा ने इजराइलियों को कहा, तुम लोग एक बर्रा लेना और इस बर्रे को क्या करना, उसकी एक ज़िबा करना और उसकी क्या करना, ज़ियाफत करना, और तू और तेरे खाने के राइट और लेफ्ट और तेरा पड़ोसी इस खाने को, इस बकरे को, इस बर्रे को ले और खाए। तुम लोग खाना और इसके बाद तुम फिर मुल्क मिस्र से कूच कर जाना। बाइबल के अंदर यहां पर नजर आता है कि जैसे ही उन्होंने बर्रे को लिया, उन्होंने उस बर्रे को आग में भूना और खाया। और बाइबल के अंदर लिखा है कि उन्होंने जबरदस्त ज़ियाफत की और उससे अगले दिन, उससे आगे जो दिन आए, फिर खुदावंद के हुक्म के मुताबिक मूसा ने अपनी कौम बनी इस्राएल को वहां से छुड़ाया और उनको साथ ले गया। ये रवायत, ये चीजें, ये जबरदस्त ज़ियाफत यहां से चलती आ रही है। ये कोई आम नहीं है कि बस यीशु ने फैसला कर लिया। यीशु ने कहा कि मैं भी तुम्हें एक बहुत बड़ी गुलामी से आजाद करने वाला हूं, फिर तुम्हारे ऊपर न कभी गुनाह, ना कभी मौत का साया रहेगा, ना कभी गुनाह और उसकी तमाम चीजों का, ना अबलीस का, ना कभी तुम गुलाम रहोगे। मैं तुम्हें इस ज़ियाफत के बाद आजादी के शहर के अंदर पनाह देने वाला हूं। हालेलुया। जब मूसा मुल्क मिस्र से इस्राएलियों को लेकर आया तो वो भी उनको सिर्फ गुलामी से उसने छुटकारा दिया, मगर यीशु ने इस ज़ियाफत के अंदर कहा कि जो कोई शख्स इस खून की पैरवी करता है और मेरे बदन के साथ जुड़ा रहता है, वो जिंदगी पाएगा और हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। इस ज़ियाफत का मतलब है कि ज़ियाफत करने के बाद कूच कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। इस ज़ियाफत का मतलब क्या है? इस खाने के बाद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, चले जाना। यीशु भी ऐसे ही हुआ। यीशु ने ज़ियाफत की और उसके बाद यीशु को वो पकड़ने वाले आगे आप लोग सब जानते हैं। मगर बाइबल के अंदर लिखा है, जब वो ज़ियाफत यानी कि यीशु मसीह की ज़ियाफत चल रही थी और उसके बाद मिस्र के अंदर भी वो ज़ियाफत खा रहे थे, यानी कि पुराने आदमी की मैं दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों को चीजों को लेकर चलना है, राइट भी चलना है और लेफ्ट भी। यानी कि राइट से मुराद है कि वो चीज जो पुराने आदमी में की गई, अब वो चीज जो नए आदमी में की जा रही है। पुराने ऐहदनामा के अंदर जैसे ही उन्होंने एक बर्रे को ज़िबा करके और वह खाने के बाद उन्होंने अपने घरों के ऊपर क्या किया, यानी कि उस बर्रे का खून लगाया और कहा कि हम इस बर्रे के खून से क्या हो जाएंगे, मौत की गुलामी से आजाद हो जाएंगे। उस रात खून लगाने से
पूरे इज़राइल के लोग बच गए, मगर उन्होंने वो बर्रे के गोश्त को खाया ताकि कोई बीमारी, मिस्र की कोई भी जम्स उनकी लाइफ में कभी इंटर ना रहे, उनकी लाइफ में कभी भी ना रहे। मगर उन्होंने क्या किया, उस बर्रे का खून अपनी चोटों पर और उसका बदन खाया ताकि उनकी बॉडियों के अंदर और उनकी हड्डियों के अंदर कोई भी चीज, जम्स जो अगली सी कुलतों का आता है, जादूगरों का होता है, वो उनकी लाइफ में ना रहे। आज हमारी लाइफ के अंदर भी, आज हमारी लाइफ के अंदर भी जब तक हम यीशु का खून अपनी रूह, जान और बदन के ऊपर नहीं लगाते, तो तब तक हम बीमार और कमजोर और बहुत सी बीमारियों के अंदर रहते हैं। क्योंकि यीशु का खून मेरे लिए और आपके लिए मेडिसिन का काम करता है। और बाइबल के अंदर लिखा है कि यीशु डॉक्टर है। क्या है? डॉक्टर है। और वो हमारी रूह का भी डॉक्टर है और हमारे बदनों का भी डॉक्टर है। आज हमारी लाइफ के अंदर उस डॉक्टर के लिए जरा जोरदार ताली बजा दें। बाइबल के अंदर लिखा है कि जब यीशु ने कहा कि मेरी बड़ी आरज़ू थी कि ये ज़ियाफत तुम्हारे साथ खाऊं। क्या करूं? ज़ियाफत तुम्हारे साथ खाऊं। मगर बाइबल के अंदर लिखा है यीशु ने ये ज़ियाफत खुद तैयार की थी अपने शिगिर्दों को पार्टी देने के लिए। ये खुद यीशु ने खुद तैयार की थी। यीशु ने हर एक चीज अपने हाथों से परचेज की और हर एक चीज जो उसका टेस्ट था और उनसे जहां जहां से वो चीज लेकर उसको बनवाया और उसको ऑर्डर किया। ये सारा का सारा जो प्लान था यीशु मसीह नासरी का खुद का प्लान था। और बाइबल के अंदर लिखा है शिगिर्दों को भी बड़ी ये ख्वाहिश थी कि आज हमारे टीचर ने हमारे लिए कौन सी ज़ियाफती तैयार की है, कौन सा जबरदस्त खाना हमारे टीचर ने हमारे लिए बनाया है। पहले तो वो खुद ही वो सारे 12 के 12 शिगिर्द करते थे और हम बहुत सी और भी बहनें थी जो खाने और पकाने का काम करती थी। मगर आज वो सारे लोग बड़े हैरान थे कि आज यीशु मसीह खुद हमारा टीचर, हमारा रब्बी हमें खाना खिलाएगा। मगर जैसे ही बाइबल के अंदर लिखा है यीशु ने ज़ियाफत की। और बाइबल के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह ने जब ज़ियाफत के लिए अपने शिगिर्दों को बुलाया और कहा कि तुम मेरे साथ इस ज़ियाफत के अंदर शामिल हो। यहूदी दस्तूर के मुताबिक वो जब भी अपने इस ज़ियाफत के अंदर बैठते थे वो एक दरमियान में एक कलीन बिछाते थे और कलीन के ऊपर क्या करते थे, वो सारा खाना रखते थे। और वो जब उस खाने को, उस ज़ियाफत को खाने के लिए बैठते थे वो हमेशा क्या करते थे, एक राउंड बनाते थे। क्या करते थे? राउंड बनाते थे। और जब राउंड बनाते थे और उसमें जब बैठते थे और जो जबरदस्त उनका लीडर, उनका टीचर होता था, वो एक फ्रंट लाइन पर एक चेयर पर बैठता था। मगर जैसे ही यीशु ने उस सीट पर बैठा और सब शिगिर्द तरतीबार उसकी ज़ियाफत में बैठ गई। और शिगिर्द इतने ज्यादा उनका दिल था कि हम देखें कि क्या क्या चीजें बनी है। यहां तक कि वो जैसे जैसे अपने कामों से और अपनी सीट पर बैठे, यहां तक कि उन्होंने यहूदी दस्तूर के मुताबिक जब कोई खाने के लिए बैठता था वो अपने हाथ और पांव धोते थे। वो हमेशा अपने कमरे के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड रखते थे या एक बड़ा सा जगह रखते थे जहां पर जो कोई खाने के लिए आता वो पहले अपने पांव को और अपने हाथों को धोता और फिर बाद में क्या करता, ज़ियाफत में बैठा। मगर शिगिर्दों के अंदर भी ये बड़ी कि हम उस चीज को देखें जो यीशु ने हमारे लिए कौन सी आज ज़ियाफत तैयार की है। मगर शिगिर्द इतने बेचैन थे कि उन्होंने अपने पांव तक नहा धोए। उन्होंने अपने पांव तक नहा धोए। इतने वो यानी कि अपने टीचर की इस ज़ियाफत के लिए बेचैन थी। और बाइबल के अंदर लिखा है यीशु ने कहा इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ ये ज़ियाफत खाऊं या तुम्हें अपना बदन या अपना खून तुम्हें दूं,
यीशु ने पहले अपने शिगिर्दों को कहा, तुम ये एक चीज भूल गए हो पर मैं नहीं भूला। यीशु ने एक बड़ा सा बोल लिया और अपने शिगिर्दों को कहा कि लाओ मैं तुम्हारे पांव धोऊं। मगर पतरस कहने लगा कि ऐ मेरे उस्ताद, ऐ मेरे रब्बी, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, क्या तू हमारे पांव धोएगा? यीशु ने कहा, अगर तुम भूल गए हो तो मैं ये तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा। आज कलीसिया के अंदर बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। इसका मतलब है कि आज वो अपनी इस जबरदस्त चीज को भूल गए हैं, इस हुक्म को भूल गए हैं। बाइबल का लिखा है कि जाओ तुम सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। अगर किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया, क्या है? नहीं लिया, तो फिर वो पांव धोए। अगर पानी का बपतिस्मा लिया है, रूह कुदस के साथ वो मनूर किया गया है, कलाम के साथ फिल किया गया है, क्या किया गया है? तो फिर इसका मतलब उसने पूरे साथ अपने पांव, हाथों, अपने रूह, जान और बदन को धोया है। क्या किया है? धोया है। शिगिर्द एक चीज भूल गए थे, वो अपना पांव धोना भूल गए थे। यीशु ने कहा, जो कोई मेरी ज़ियाफत में आना चाहे, मेरी बात आना चाहे, वो कोई एक छोटी से छोटी चीज को भी ना भूले। बाइबल के अंदर लिखा है कि जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं, लिखा है कि एक सौदागर था, एक बादशाह था, जिसने अपने घराने के अंदर एक ज़ियाफत की। उसने अपने मोटे मोटे बैल ज़िबा किए और कहा कि जाओ, जिसको मैंने बुलाया है वो लोग तो नहीं आए, वो लोग तो नहीं आए, मगर जो चौक के अंदर खड़े हैं, जो चाव के अंदर हैं, जो किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, उनको बुला कर लाओ। मगर नौकरों ने जाकर सब लोगों को बुलाया और कभी किसी को तैयार किया, कभी किसी को तैयार किया। कहा, यार तेरी जूती रहेगी, तू जूती पहन ले। किसी को कहा कि तेरे कपड़े सही नहीं है, आ मैं तुझे बाजार से कपड़े ले देता हूं। मगर उन नौकरों ने 4, 5 या 3 घंटों के अंदर उन पूरे शहर के अंदर जितने लोग थे उनको इकट्ठा किया और उसकी बादशाही के अंदर लेकर आए। मगर उनमें से एक शख्स था जिसका लिबास शादी वाला नहीं था। यीशु हमारी एक छोटी सी चीज की भी क्या करता है? फिक्र करता है। ये यहां से अभी कमजोर है, इसको फिल करता ले। उसकी बादशाही के अंदर अगर आप लोगों ने दाखिला लेना है तो आपकी कोई भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम नहीं होनी चाहिए। यीशु ने ज़ियाफत की और फिर उनके पांव धोए, वो रवायात को पूरा किया और उसके बाद यीशु ने कहा, हाँ मैं बहुत आंसू उठा रखता था कि मैं अपने शिगिर्दों का क्या करूं। अपने कूच करने से पहले ये ज़ियाफत उनके साथ मनाता, ये खाना हमेशा यादगारी वाला रहता। और यीशु ने ऐसा ही किया। और बाइबल के अंदर लिखा है, जब यीशु ने अपने शिगिर्दों को कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, लो तुम सब इसमें से खाओ। क्या करो? लो तुम सब इसमें से खाओ। और उन्होंने सब ने यीशु का बदन जो रोटी की सूरत में था उसने दिया और उन सब ने खाया। और बाइबल के अंदर लिखा है कि जब उसके बाद उसने अब एक प्याला भी लिया जो अंगूरों का शीरा था, उसने कहा कि ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, लो इसे भी लो क्योंकि इसमें जिंदगी है। और उन सब ने क्या किया? उस सारे चीज को, यीशु के ब्लड को और उसके बदन को लिया और सब ने बांटा और सब ने खाया। और बाइबल के अंदर लिखा है कि उस बदन के बाद और उस खून के बाद फिर दोबारा उनकी जिंदगी के अंदर कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई नाकामी, कोई शर्मिंदगी ना रही। यीशु का लहू आपकी जिंदगी के अंदर ये काम करता है। आपको हर दुखों से, हर परेशानियों से, हर नाकामियों से, हर शर्मिंदगियों से
आपको आजाद करने की कुदरत रखता है। जब यीशु का बदन ऐसा है कि वो अपने दुश्मनों के लिए भी यीशु का लहू ढोलता है। यीशु का दुश्मन, जब यीशु ने अपने जान की क्या ले ली थी, कीमत ले ली थी, यीशु ने तो उसके भी पांव धो दिए और यीशु ने तो अपना खून उसके लिए भी दे दिया, अपना बदन उसको भी खाने को दे दिया। शायद इसकी जान आज ही आधे या 15 या 20 मिनट के बाद ही ये चेंज हो जाए, बदल जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। बाइबल के अंदर लिखा है, यीशु ने कहा मेरी बाबत जो लिखा है वो तो पूरा होगा। अफसोस उस शख्स के ऊपर जिसके जरिए या जिसकी बाबत ये काम हो, अफसोस उसके ऊपर। मगर बाइबल के अंदर लिखा है, जब हम पुराने ऐतनामे में पढ़ते हैं तो जो सरदार काहिन थे, क्या करते थे? सरदार काहिन थे, वो जब बर्रे को ज़िबा करते थे और तमाम कौम के कफारे के लिए क्या करते थे? 2 बर्रे लेते थे, एक खुदा के लिए और एक अज़ाज़िल के लिए लेते थे। जो खुदा के लिए बर्रा लिया जाता था, जिसकी पर्ची निकलती थी खुदा के लिए, उसको लेते और काहिन अपना हाथ रखते और पूरी कौम के गुनाहों का कफारा उस बर्रे के खून से अदा होता। और जब अदा होता तो पूरी कौम उस साल क्या करती थी? तमाम गुनाहों से छुटकारा पाती थी। और उस बर्रे का खून 7 बार खैमा इज्तिमा के अंदर छिड़का जाता था। क्या कर जाता था? 7 बार छिड़का जाता था। और यीशु का खून भी मेरे लिए और आपके लिए 7 बार ही बहाया गया। उसने कहा कि ये मेरा बदन और मेरा खून है, पियो, खाओ, जिंदगी पाओ और देखो कि तुम्हारे खुदा ने, यहोवा खुदा ने तुम पर कैसी मेहरबानी कर दी है। आज उसका खून जिंदा लहू बोलता है। अभी यीशु की तो सलीब के ऊपर जान भी नहीं निकली थी कि यीशु का खून तब भी बोलता है। क्या करता है? उसका बदन तो तब भी आपके लिए तोड़ा गया। आज यीशु का खून और मेरे लिए और आपके लिए जो बहाया गया और उसका बदन जो तोड़ा गया है, हम उसकी कदर करना सीखें। आज का दिन दुनिया में सबसे बड़ा दिन है, जिसके अंदर मेरे लिए एक शख्स ने जान देकर मुझे इतनी बड़ी लानत से छुड़ा लिया। कोई शख्स दुनिया के अंदर नहीं है जिसके वसीला से तमाम इंसान जिंदगी पाते, तमाम इंसान उसके जरिए से बच पाते। कोई इंसान ऐसा नहीं है। ऐसा करने में कादिर मुतलिक है। उसने अपने ही बेटे को हमारे लिए भेजा ताकि हम उसके जरिए से जिंदगी पाएं। क्या पाएं? जिंदगी पाएं। और यीशु ना मर्द की ख्वाहिश से पैदा है, बल्कि खुदा के रूह से और उसकी कुदरत के जरिए से वो पैदा हुआ। और खुदा की कुदरत और उसके जलाल की कुव्वत के वसीले से हमने उसके बेटे के खून और उसके बदन के वसीले से गुनाह से, अबली से और मौत से क्या पाई है? आज रहाई पाई है। आज भी कोई शख्स यीशु की ज़ियाफत में बैठकर उसके बदन को और उसके खून को आज भी कोई चखता है या उसके बदन को कोई खाता है, तो याद रखिए, मौत उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहती, गुनाह उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहता। और इब्लीस का हर वो प्लान जो पहले जब उसने यीशु का खून नहीं पिया था, उसका जिंदगी का हिस्सा बना हुआ था, उसका मुकद्दर बना हुआ था। लेकिन जैसे ही यीशु का खून आपकी जिंदगी के अंदर आता है, इब्लीस आपकी जिंदगी के अंदर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। इसलिए तो यीशु का खून उसे शर्मिंदा करता है। हालेलुया। यीशु का लहू क्या करता है? उसे यीशु का लहू कहता है कि इब्लीस हारा हुआ है, तारीकी हारी हुई है। आज जो कोई उसकी ज़ियाफत में बैठे हैं वो जिंदगी पाएंगे। हालेलुया।
जो कोई यीशु के कदमों में आता है वो क्या पाता है? जिंदगी पाता है। और जिंदगी हम सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? यीशु के पास है। और जिंदगी देने वाला कौन है? यीशु देने वाला है। आज हमारी जिंदगी के अंदर जो यीशु ने अपना खून बहाया, अपना लहू बहाया, उसके लहू के वसीले से मैं छुड़ाया गया हूं, आप बचाए गए। पाक जुमेरात को दिन यीशु ने आपके लिए एक बहुत जबरदस्त ज़ियाफत की। कहा कि मेरी बड़ी आरज़ू थी कि मैं अब कलीसिया के साथ इस ज़ियाफत को कहां खाऊं? आसमान की बादशाही की। अब मेरी बड़ी आरज़ू है कि जहां मैं हूं तुम मेरे साथ वहां रहो। मैं जानता हूं, यीशु ने अपने शिगिर्दों को कहा, मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए क्या करूं? राह तैयार करूं। तो शिगिर्दों ने कहा, ए रब्बी, ए उस्ताद, तू कौन सी राह पर जाना चाहता है? हम यरूशलेम की सारी राहों को जानते हैं। मगर यीशु ने इससे पहले कहा था, तुम उस राह को अभी नहीं जानते। पर जैसे ही यीशु ने उस भेद को अपने शिगिर्दों के ऊपर खोला और कहा, जब वक्त आएगा और तुम उस राह से वाकिफ हो जाओगे। मगर जब यीशु ने इस ज़ियाफत को हमारे लिए तैयार किया, आज हमें उस ज़ियाफत का जरिए से मालूम हो रहा है कि यीशु ने अब मरने के बाद, जी उठने के बाद, फिर शरीर के ऊपर गालिब आकर, मौत और आलमरवा पर गालिब आकर उसने कहा, अब मेरी बहुत बड़ी विश है, अब ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ कहां पर ज़ियाफत करूं? आसमान की बादशाही जो मेरे बाप ने तुम्हारे लिए तैयार की है। मैं चाहता हूं कि हर एक बेटी, हर एक बेटा मेरे साथ आसमान की बादशाही में क्या करे? ज़ियाफत में शामिल हो जाए। आज यीशु का लहू मेरे लिए और आपके लिए बोलता है। आज यीशु का लहू जो वाकई जबरदस्त एक कायदा कानून का हमारी जिंदगी के अंदर लेकर आता है, आज यीशु का लहू हमारे लिए बोलता है। बाइबल के अंदर लिखा है, पुराने अहदनामे के अंदर वो लहू जो कफारे के लिए दिया जाता था वो बकरों और छतरों का खून था। मगर आज हमारे लिए बकरों का और छतरों का खून हमारा कफारा नहीं, हमारी जान और हमारी रूह का कफारा वो नहीं बन पाए। वो सिर्फ आरसी खून था, आरसी सिर्फ हमारे गुनाहों को ढांक देता था। मगर यीशु का लहू जो मेरे लिए और आपके लिए बहाया गया है, आज मुझे मुकम्मल तौर पर क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, मुझे और आपको तसल्ली और इत्मीनान देता है। और बाइबल के अंदर लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान से मराद ये है कि मैं तुम्हें अपनी रूह का एक हिस्सा तुझे देता हूं और तुम्हें अपनी एक मिरास का एक हिस्सा देता हूं। अपने बदन के अंदर तुम्हें एक जगह देता हूं। मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूं। जब किसी के ऊपर केस लगता है थाने का या कोई भी ऐसा केस, अगर कोई शख्स उसकी जमानत दे या उसके लिए कुछ चंद दिनों के लिए उसको क्या करे? इत्मीनान दे, तो कहता है मुझे उस शख्स ने थोड़ा सा इत्मीनान दिया है। आज यीशु ने भी आपको इत्मीनान दिया है, क्योंकि वो अपनी रूह का इत्मीनान देता है, अपनी बादशाही का इत्मीनान देता है, अपने बाप के उस फजल में से आपको इत्मीनान देता है। कहता है ये मेरी रूह में से मेरा इत्मीनान लो, मेरे बदन में से, मेरे खून और गोश्त में से ये इत्मीनान लो, क्योंकि ये इत्मीनान तुम्हारे लिए ही है। और वो इत्मीनान मेरे लिए शरीर के ऊपर उसको लटका दिया गया, उसके बदन को हैंग कर दिया गया। मगर बाइबल के अंदर लिखा है यीशु का खून मेरे लिए और आपके लिए बोलता है। क्या करता है? बोलता है। यीशु का खून जो हम हर महीने, हर हफ्ते, यीशु का खून हम बहुत सी बोतलों के अंदर, बहुत सी शामों के अंदर यीशु का लहू इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं ये जिंदगी की रोटी है, ये जिंदगी का पानी है, ये जिंदगी का लहू है जो मेरे लिए और मेरे खाने के लिए है। तो बाइबल के अंदर लिखा है यीशु का इत्मीनान आपकी जिंदगी के अंदर हमेशा के लिए कायम और टाइम रहता है। हालेलुया। कितने
कितने लोग जानते हैं कि यीशु का लहू मेरे लिए है, मेरे घराने के लिए, मेरी शिफा और मेरी बहाली के लिए है। बाइबल के अंदर लिखा है, जब यीशु ने अपने शिगिर्दों को कहा, मेरी बड़ी ख्वाहिश और आरज़ू थी। ये कितनी बड़ी बात है। एक मालिक, एक दुनिया का खालिक और मालिक, जिसके लिए सारी जमीन बनाई गई, जिसके लिए सब कुछ तैयार किया गया, वो आपकी कितनी पहलवाई, आपकी कितनी फिक्र करता है। वो आपको खाने के लिए खास चीज देता है। आज हम भी जब भी किसी मुसीबत के अंदर या परेशानी के अंदर होते हैं, तो हम उस ज़ियाफत में से क्या कहते हैं, आओ बैठे, ज़ियाफत में बैठे, उसके मज़बा पर बैठे, उसी ज़ियाफत के कलील पर बैठे, उसके मज़बा पर बैठकर कहें कि आज यीशु का लहू वाकई मेरे लिए तोड़ा गया है, मेरे लिए बहाया गया है। आज यीशु का लहू कैसा है? वो तो उसके सताने वालों के लिए भी बोलता है। यीशु का लहू तो उसके सताने के लिए भी, और उसके जो लोग उसके अगेंस्ट खड़े होकर बातें भी करते हैं, तब भी उसका लहू उसके लिए बोलता है। आज मेरे मालिक का और मेरे खालिक का जो यीशु मसीह है, निजात दहिंदा है, मेरे लिए और आपके लिए जो घायल किया गया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं, जिसका खून मेरे लिए और आपके लिए बोलता है। हालेलुया। आज यीशु का लहू, बाइबल के अंदर लिखा है कि वो उसका लहू जो कोई अपनी पोशाक के ऊपर उसके दाग और धब्बे को लिए फिरता है, इसका मतलब है कि उसकी पोशाक, उसका बदन उसके लहू से धोया गया है। और जो कोई शख्स उसके लहू को पीता है, और बाइबल के अंदर क्या है, उसके गुनाह चाहे कितने भी किरमजी क्यों ना हो, कितने भी ढीठ क्यों ना हो, वो जुल्फे की तरह क्या करता है, धो डालता है। आज यीशु का लहू जो मेरे लिए और आपके लिए बहाया गया है, आज मेरी और आपकी शिफा के लिए बोलता है। आज यीशु का लहू मेरे लिए और आपके लिए जो बात करता है, वो हाबिल के खून से भी क्या करता है, भूलकर बातें करता है। हाबिल का खून तो जमीन के ऊपर पुकारता है, चीखता है कि मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। मगर यीशु का खून कैसा है, वो अपने सतानों के सताए हुए लोगों जो उसको सताते थे, उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं और उसको कहते हैं कि तू एक सही नहीं है, या उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसे जुमले बोलते हैं, या उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव सोच रखते हैं। यीशु का लहू तो उसके लिए बोलता है, और उसकी क्या करता है, उसे छुड़ाने और बचाने के लिए क्या करता है, हर वक्त तैयार रहता है। अगर कोई शख्स यीशु के लहू को पुकारे, हालेलुया, यीशु का लहू मेरे लिए और आपके लिए पुकारता है। और बाइबल के अंदर लिखा है, एक शख्स जब यीशु ने ज़ियाफत अपने शिगिर्दों के लिए तैयार कर ली, और अपने एक शिगिर्द को कहा, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरी मेज पर है, और मैं जिसे ये नवाला फर्स्ट टाइम पहला दूंगा वही शख्स है। मगर शिगिर्दों ने वो चीज गौर से ना सुन पाए, उसके ऊपर ध्यान ना कर पाए, और उसने पहला नवाला अपने शिगिर्द यहूदा अस्करियोती को दिया और कहा, ए मियां, अपना काम जो तू कर रहा है उसको क्या कर, जल्दी जल्दी कर, क्या कर, जल्दी कर। और बाइबल के अंदर लिखा है, उसने जैसे ही नवाला यीशु का लिया और उसका ब्लड पिया, उसने ज़ियाफत में से उठा और चला गया। और आधी रात को यीशु को बहुत सी भीड़ आई, और उसके चिगिर्द खड़ी होने, और उसको गतसमनी बाग के अंदर, उसको के अंदर लिखा है, वहां पर यीशु काफी बेचैन था, और अपनी बेचैनी के आलम के अंदर क्या करने लगा, वो अपने घुटनों के बल होकर जमीन के ऊपर ऊंधे मुंह अपने बाप के आगे दरखास्त करने लगा और कहने लगा, ए बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। फिर दोबारा
यीशु ने अपने आप को बाग में देखा, अभी भी मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही, अभी भी मेरी रूह को चैन नहीं मिल रहा, अभी भी मेरा जिस्म थरथरा रहा है, अभी भी मेरे जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, मेरे जिस्म के बाल खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी भी कुछ ना कुछ है। वो फिर दोबारा ऊंधे मुंह गिरा और अपने बाप के पास कहने लगा, ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ही फिर उसने कहा, उसने फिर दोबारा ऐसा ही सारा प्लान किया। उसके बाद बाइबल के अंदर लिखा है कि यीशु ने फिर दोबारा प्रेयर की और कहा, ऐ बाप, फिर मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और बाइबल के अंदर लिखा है, और जैसे ही यीशु ने कहा है मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी, और जब यीशु दुआ कर रहा था तो उसका जो पसीना था, वो खून बनकर बूंदों गिर रहा था। और बाइबल के अंदर लिखा है कि जब यीशु को उन लोगों ने पकड़ लिया और कहा, जब यीशु का शागिर्द यहूदा अस्करियोती आया, उसने यीशु का भरोसा लिया। और इसकी ये खास बात थी यहूदियों की, जब कोई शख्स जिससे बहुत प्यार करता है उसको क्या करते हैं, उसका भरोसा लेते हैं। क्या लेते हैं? अपने उस्तादों का, अपने लीडरों का क्या करते हैं, भरोसा लेते हैं, या उसके हाथ किस करते हैं, या उसकी पोशाक को क्या करते हैं, किस करते हैं। और जब वो भीड़ आई यीशु को पकड़ने के लिए, जब यहूदा अस्करियोती ने अपना हाथ बढ़ाकर यीशु के कंधे पर रखकर उसकी पोशाक और उसके हाथ को और उसके बदन का भरोसा लिया, तो इब्ने आदम, यीशु ने कहा, क्या तू भरोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? और आप बाइबल में लिखा है, तो पतरस ने अपनी तलवार और अपनी चीज निकाली और एक सिपाही के कान को उड़ा दिया। और बाइबल के अंदर क्या, यीशु ने उसी वक्त उसके कान को पकड़ा और उसी वक्त उसका कान ठीक हो गया। और वो सारे के सारे हैरान हो गए, और सारे के सारे जो यीशु को पकड़ने के लिए 4-4 कदम ऊपर आए हुए थे, वो 4-4 कदम पीछे हो गए। कुछ लोग डर गए कि ये वाकई ही रास्तबाज है, हम गलत आदमी को पकड़ने के लिए तो नहीं आ गए। मगर यहूदा अस्करियोती बहुत ही, क्योंकि उसने पैसे का एक क्या कहता मुतालबा किया हुआ था, इसलिए वो पीछे नहीं हटा। और दूसरे जो सरदार थे उन्होंने यीशु को पकड़ लिया। और बाइबल के अंदर लिखा है, पकड़ने के बाद आप लोग जानते हैं, तो यीशु को सारी रात उन्होंने क्या किया, मारा, यीशु के ऊपर तशद्दुद किया। और आज के गुनाह जो बनी आदम से लेकर आज तक इंसान करते आ रहे हैं, वो यीशु के ऊपर ला दिए गए। और यीशु के खून से मुझे और आपको क्या मिला, छुटकारा मिला है। आज हम जिस ज़ियाफत में खड़े हैं, ये आम ज़ियाफत नहीं है, ये एक खास ज़ियाफत है जिसके अंदर आपको बुलाया गया। आज बहुत से लोग हैं जो इस ज़ियाफत के अंदर शामिल नहीं हुए। इसका मतलब है उन्हें इस आज के दिन की कदर नहीं है। मगर जिनको यीशु बुलाता है वो इस ज़ियाफत के अंदर शामिल हो जाते हैं। हालेलुया। आज आप क्या हो, खास लोग हो। क्या हो, कि आप इस ज़ियाफत में शामिल हुए हो, और आप आसमान की बादशाह के अंदर भी इसी ज़ियाफत के अंदर शामिल किए जाओगे। हालेलुया। अभी यीशु का बदन और उसका खून जो मेरे लिए और आपके लिए तोड़ा जाता है, वो तैयार है। कितने लोग इस बदन को खाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। हर एक शख्स इस बदन को ले, क्योंकि ये बदन जो मेरे लिए और आपके लिए तोड़ा गया है कीमती है। ये सोने, चांदी और हीरे, मोती और रुपए पैसों से भी भरकर क्या है, कीमती है। हालेलुया। और मैं दरख्वास्त करता हूं, आए हम इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा, आज का कलाम ये तूने मेरी जिंदगी के अंदर रखा, मैं शुक्र अदा करता हूं, तूने मुझे याद किया है और इस ज़ियाफत के अंदर है। आए सब आंखों को बंद करते हैं और हम दुआ करते हैं।
قدوس مہربان خدا لشکر خدا، میں اس کلام کے لیے اور سننے والی روحوں کے لیے، ان کے بدنوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، جن کے ذریعے سے خدا تو آج میرے ذریعے سے، آج میری روح اور جان اور بدن سے خدا تیرے روح نے اور تیرے بدن نے، تیرے لوگوں نے خدا تیری آواز کو سنا ہے، تاکہ خدا آج کی اس ضیافت کے اندر جو تو نے کہا کہ میری بڑی آرزو تھی کہ میں اس ضیافت کے اندر اپنے برگزیدوں کو، اپنے بلائے ہوئے کو بناؤں اور اپنا خون اور اپنا بدن ان کو دوں۔ اے خدا تیرا شکریہ، یسوع کا لہو جو میرے لیے اور اس کلیسیا کے لیے اور میرے لیے اور اس کلیسیا کے لیے اور ان کے خاندانوں کے لیے بہایا گیا ہے، آج ان کی نجات، ان کی شفا کے لیے بولے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع المسیح ناصری کے نام سے، آمین۔